interpretations of Quran, commentaries on Quran ko dekhein, so herein also there was this aspect of that one should not kill children because of fear of want. दूसरी बात, because while we were very important बात जो अथर साहब ने रखी कि जब हम ईरान को देखते हैं and other countries, they have got family planning. Same in that aspect, Professor Abdul Rahman, he's at Cairo University. How I have read through his work, and you'd like to quote that here again, that in his study with respect to various schools of jurisprudence that we have in Islam, somewhere there is a clear message that Islam does encourage family planning. For example, if you look at Indonesia is indeed a success story. Now, the bigger issues, like for example, if we take this message that is there, that the message of the Quran in terms of how it has been interpreted with the larger perspective also. Herein, we have to see that at the first, we all as a community, we have to make a choice. हमें एक इस समय एक बहुत important निर्णय लेना होगा कि जो एक first of all जो wrong message गया है, wrong message in terms of teaching as well as representative aspects. For example, tomorrow if this topic comes up in the mainstream media और ये कहना कि मीडिया सही नहीं, ये गलत होगा. One has to deal with it. One has to engage with it. For example, if I see this topic being argued by Athar Sahab or anyone from Impar, of course, there must be some kind of sound thinking to it. But if there's any XYZ person जो इस विषय पर बैठकर बात करेंगे और टॉपिक को गलत तरीके से, गलत पर्सपेक्टिव से, गलत नजरिए से प्रेजेंट करेंगे, once again we will be at a huge loss. So like many other topics, we saw it in the case of educational reforms, we've seen it in the case of this bigger narrative of media, social media representation, amongst others. What is first essential is that one has to put forward the right light. And again, if you go by if you go by the research, somewhere the right message of Islam with respect to need to have adequate safety, need to have adequate family planning, and above all, for example, we saw in the case of triple talaq also, that how this entire issue was not dealt well by the Muslim intelligentsia. और यहाँ पर मैं intelligentsia में मैं आप और हम जैसे लोगों को नहीं कहूंगी, but the larger bigger stand taken by the ulemas. Because if you read the Quran, justice forms the core. How can you think of have it very clearly says that if you're not able to do justice between two different wives, you have a huge huge punishment that lies at the door of the judgment day. Somewhere similarly with respect to family planning also, this message that how one must look after due conservation of family, due education of children, due upliftment, upbringing of children, it is also an important aspect that has been time and again raised with respect to the bigger Quranic message. The second thing is that this dichotomy between theory and practice, which is a fact, and a lot of Muslims, are struggling because of it, because somewhere this dichotomy between theory and practice between a representative minority of the Muslim community has led to huge problem for majority of the common people, professionals, hardworking people in the Muslim community. This dichotomy has to be vocally and verbally dealt with, that नहीं ये चीज गलत है, हमारे किताब में ऐसी बात नहीं लिखी है. And this dichotomy has to be dealt with a bigger picture of unity. By unity we mean that at least on common causes we as community must draw out a line कि हम एक दूसरे के साथ हैं, that we as a community must draw out a line that we are here for a common cause of development of each other, for empowerment of each other, or perhaps you can say safe existence of each other. Because today we've seen that how there is a time when there was a huge question mark also on the very existence, that why do you even exist in in this in a particular land. So the very idea that unity has to be factored in while conveying the message. So as I said, I'll be short and crisp here. My only take in that it's very essential that we must deliberate on family planning. We must deliberate on important methods that we can employ in discussion with the ulemas, also in discussion with the academic and other societal aspects also, and have an important dialogue of
awareness must reach down the grassroots level. शायद आप और हम शायद बहुत खुश नसीब हैं कि हम लोग अच्छी किताबें, अच्छे स्कूल, अच्छे घर से हैं, लेकिन हमें उन लोगों का सोचना है जो इन सबसे महरूम हैं, जो इन सबसे वंचित हैं. So let this dialogue, let this awareness reach out to the last person which is existing in our society, and with right unity, with right dialogue, with right approach, let's beat this dichotomy between the right perspectives which are there in our religion, in our faith, with respect to our practices. So with this, once again, thank you Impart, thank you so much Khalid Sahab, thank you so much Athar Sahab, Musharraf Sahab, Dr. Lubna, all the respected people who are there in our webinar today. I look forward to learning more from you. But as someone who comes from the realm of political science, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसी political science को पढ़ाती हूँ और research में काफी interest रखती हूँ, this is what I had to present कि जो 2004 में जो मुद्दा था, 2020 में भी वही मुद्दा है, वही इशू है कि कौम की बात, कौम की विचार सही तरीके से आज भी समाज के बीच नहीं रखे जा रहे हैं. और above all कि इन सारी बातें करने से हम सबसे बड़ा गुनाह अपनी किताब कुरान के साथ कर रहे हैं, सबसे बड़ा गुनाह हम आपस में एक दूसरे के भाईचारे के साथ कर रहे हैं. तो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का. एंड आई आथिर साहब, आई हैंड इट ओवर टू यू. बहुत बहुत शुक्रिया आथिर सर. एंड विद दिस आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग. मैं भी खुद जानना चाहती हूँ इस विषय के ऊपर, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. व्हाई आई सेड, because if you look at the larger political narrative, because how today in this एक मिनट और लूंगी अथर साहब कि अगर आप किसी भी आज मुल्क में देखें, this entire dichotomy between us versus them, everything has a cause of everything, from a political problem to an economic problem to a cultural problem, has the entire door, the solution or the problem cause has been reduced to the Muslim angle. अब आने वाले वक्त में क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर डिबेट होने वाली है, जहां ये पॉपुलेशन को जो मुद्दा है वो लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो एक बार फिर इम्पार के सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद. इतने इंपॉर्टेंट बात पे हम चर्चा कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की चर्चा से एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट जाएगा, दैट the Quran and Islam permits family planning. The dichotomy between the theory and the practice of Quranic messages has to be dealt with right awareness, unity and solidarity with the bigger nation and community. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, Dr. Amna. Thank you very much. Your thoughts and your perspective was very informative. And to Quran, you emphatically said that this Quran is our friend. Family planning is not only permitted, it's supported and encouraged also. मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा, जो सोशल क्लास की बात हुई थी, तो एक प्रैक्टिकल मेरे साथ मेरे सोसाइटी में एक फंक्शन चल रहा था और वहाँ पे एक साहब हमारे दोस्त भी थे, वो आपस में लोग बात कर रहे थे. वो 2 शादियां कर लेते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और उनकी पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो हो रही है. तो वो मेरा जानने ही वाला बंदा था, विजय. तो मैंने उसको बुलाया, यार मैंने कहा तो तुम्हारे मुसलमान कितने दोस्त हैं? एक मैं हूँ और 4-5 और को भी जानता हूँ जो तुम्हारे दोस्त हैं, और में 100 से ज्यादा होंगे. कहते हैं बिल्कुल है. हमने किसी ने 2 शादी की या किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं? नहीं है. तो मैंने कहा उससे ये कहा कि मेरे तो कम से कम 10,000 मुसलमान हजारों जानने वाले हैं, किसी के भी 2 से ज्यादा बच्चे नहीं है, 3 से ज्यादा मैक्सिमम नहीं है. लेकिन जो हमारे यहाँ भाई काम करने आती है, ये जो हमारे यहाँ ड्राइवर आते हैं, वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उनके 5-5, 6-6 बच्चे हैं. तो प्रॉब्लम इज नॉट रिलीजियस स्पेसिफिक, द प्रॉब्लम इज द सोशल क्लास स्पेसिफिक. तो इन हम जैसे डॉक्टर अन्ना ने कहा कि जो हमारा ये क्लास है, हमें यहाँ मैसेज देना है और बहुत सिंथेटिकली देना है कि फैमिली प्लानिंग बहुत सेंसिटिव चीज है. इट हैज टू बी अडॉप्टेड, इट हैज टू बी प्रैक्टिस फॉर द बेटरमेंट, नॉट ओनली फॉर देयर फैमिली, फॉर मुस्लिम एज वेल एज फॉर द ह्यूमैनिटी. So that is one of the most important things. And I again thank Dr. Amna. And now I invite Mr. Musharraf Ali
He is an author, journalist, and advisor for to empower, and I his thoughts will enlighten us very much. Dr. Musharraf Ali, please welcome. Mr. Musharraf Ali. He has to unmute. He has to unmute. Musharraf, so kindly unmute your mic. जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है अब? बिल्कुल आ रही है। वेलकम मिस्टर मुशर्रफ अली। हाँ, शुक्रिया साहब। तो ये जो बहुत ही अहमियत वाला मौजू है फैमिली प्लानिंग, तो प्लानिंग ही बहुत अहमियत रखता है मौजू। अब देखिएगा कि जिंदगी के हर क्षेत्र में जहाँ पर भी आप देखेंगे, बिना प्लानिंग के कुछ जो है आप तरक्की कर ही नहीं सकते। ये बड़ा वो है कि हमारे मुल्क का जो है प्लानिंग कमीशन जो है वो खत्म कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद सरकार जो है हर एरिया में जो है प्लानिंग कर रही है। तो प्लानिंग जो है कुदरत की तरफ से भी है और इंसानों की तरफ से भी है। आप देखिएगा कि बिना प्लानिंग के जो है ना तो मौसम आते हैं, इस तरह की प्लानिंग की है कुदरत ने कि हर चीज जो है बिल्कुल सही वक्त पर और सही तरह से मौसम बदलते हैं। और आप देखिएगा कि आपकी जिस्म की जो शनाख्त है, आप देखिए कि 5 उंगलियां हाथों की हैं, उनमें खास प्लानिंग है। अब मान लिया ये प्लानिंग जो है खत्म हो जाए और एक उंगली आपकी जो है 1 फुट की हो जाए, तो आप जो है आपका हाथ जो है बेकार हो जाएगा, ना आप मुट्ठी बांध सकते हैं उससे ना कुछ। तो प्लानिंग, मेरा कहने का मतलब है कि प्लानिंग बहुत जरूरी है। हमें फैमिली की भी प्लानिंग जो है बहुत जरूरी है करना है। अब हम जो है असल में आज का जो दौर है, उस दौर का जो हल है, जो मसाइल हैं आज के दौर के, तो हमने आज के ही रेफरेंस में आज ही के जो हमारे पास जराए हैं उसमें ही तलाश करने पड़ेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि हमको जो है अपने अक्ल की उंगली पकड़कर जो है अपने फैसले करने हैं। आप देखिएगा कि यूरोप का विकास, जो डेवलपमेंट है यूरोप, अभी जो था बिल्कुल अंधकार था वहाँ पर, और उसके बाद जो रोशनी आई है वहाँ पर, तो उन्होंने सबसे पहले क्या था, वो पोप की उंगली पकड़कर वहाँ के लोग चलते थे। और जब से उन्होंने पोप की उंगली पकड़ छोड़कर जो है खुद चलना शुरू किया, तो वो यूरोप जो है तरक्की कर गया। तो इसी तरह से मैं इस फैमिली प्लानिंग को कह रहा हूँ कि आपको कहीं से वो लेने की जरूरत नहीं है। आज आप हर तरह से, बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, आप कहीं पीछे से नहीं लेते हैं, बल्कि फौरन जो आज के हालात हैं उससे तय करते हैं। मैं एक और मिसाल देना चाहूंगा फैमिली प्लानिंग के पहले, कि आप देखिएगा कि अगर हम दहेज का ही मसला देखें, तो पूरे मुस्लिम समाज में खूब दहेज लिया जाता है, और जबकि हमारे हुजूर जो हैं उनसे अली हजरत अली जो है उन्होंने कहा कि शादी, उनका रिश्ता मांगा उनकी बेटी का, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? तो उन्होंने कहा ज़ेर बख्तर है और तलवार है। तो उन्होंने कहा ज़ेर बख्तर बेच दो। यानी कि वहां पर जो है ये है कि लड़के वाले को जो है लड़की वाले को देना पड़ता है। तो हम जो है कहाँ क्या उस पर अमल कर रहे हैं पूरे उसके अंदर। इसलिए जरूरी ये है कि हम आज के हालात में जो बेहतर है हमारी कौम के लिए भी, मुल्क के लिए भी, वो कदम हमें उठाने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ फैमिली प्लानिंग। तो एक जो सबसे बड़ा जो डर हमारे देश की जो सियासत है उसमें एक दूसरे हमारे जो भाई हैं हिंदू, उसको दिलाया जाता है, वो यही डर दिलाया जाता है कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है और एक दिन ये जो है इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो जो है फिर सत्ता जो है उनके हाथ में होगी, और लोग जो है बिना आंकड़ों पे ध्यान दिए और बिना किसी तरह का अध्ययन किए कि इतने साल की सत्ता में रहने पर भी आबादी जो है वो पता कितनी हैगी यहाँ पर 14.7%। मतलब मुसलमानों की आबादी जो है उतनी है 14.7%। वो कभी भी सत्ता में जो है आबादी की बुनियाद पर नहीं आते हैं, बल्कि जिनकी आबादी कम होती है आज सत्ता पर उन्हीं का ही कब्जा है। तो मैं अब बात करूंगा
फैमिली प्लानिंग की, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज ये है फैमिली प्लानिंग में कि बच्चा और माँ उन दोनों की सेहत की बेहतरी के लिए जो है आपको बच्चों के बीच में गैप रखना पड़ेगा और कम बच्चे। इससे क्या होगा, आप बेहतर जो है उसकी तालीम पे ध्यान दे पाएंगे, बेहतर जो है उसको जो है उसकी हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे। तो ये जो है पूरी तरह से, इसके अलावा भी ये है कि पूरे मुल्क के डेवलपमेंट के लिए जो है आबादी का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आप देखिएगा चीन के अंदर बेपनाह आबादी थी और वहाँ कोई जो है उस तरह की फैमिली प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो है 78 के बाद जो वन चाइल्ड पॉलिसी चलाई, तो वन चाइल्ड पॉलिसी का नतीजा ये हो गया कि आज हिंदुस्तान के से बस थोड़ा सा ही ज्यादा है वो, और वो बिल्कुल कंट्रोल कर रही है। और उसके बाद उनकी तरक्की आप देखिएगा कितनी ज्यादा तरक्की की है। इसलिए हर तरह से जो है फैमिली प्लानिंग जो है वो बहुत जो है फायदेमंद है, आदमी की सेहत के लिए भी, उसकी तालीम के लिए भी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कहा जाता है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसमें अगस्त का एक इंडिया टुडे की जो है एक आर्टिकल आया है जिसमें जो है नेशनल हेल्थ सर्वे जो है उसके आंकड़े दिए हैं। आप देखिएगा कि लगातार जो मुसलमान हैं उनकी जो फर्टिलिटी रेट, औरतों का फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि वो अपनी पूरी उम्र में कितने बच्चे पैदा करते हैं, तो TFR कहलाता है। इसमें 92-93 में जो है वो जो फर्टिलिटी रेट मुसलमानों का था, महिलाओं का, कि वो अपनी पूरी जिंदगी में 4.4 बच्चे पैदा करती थी, और 2015-16 में क्या रह गया, 2.6, यानी कि पूरी जिंदगी में जो है 2.6 बच्चे ही जो है वो पैदा कर रही हैं। यानी कि ये अंतर, अब ये अंतर कैसे आया? एक तो तालीम का बढ़ना, तालीम जैसे ही बढ़ेगी महिलाओं की, खास तौर पर औरतों की, महिलाओं की तालीम बढ़ेगी तो जाहिर है कि वो जो है फैमिली प्लानिंग अपने आप ही जो है उसकी तरफ जाएंगी। तो अब ये देखिएगा उन्होंने क्या करा बाकी हिंदुओं की तुलना में, जो बच्चों के बीच का गैप है वो गैप जो है बढ़ा दिया उन्होंने। आप ताज्जुब करेंगे कि 92-93 में हिंदुओं के बीच जो एक से दूसरे बच्चे के बीच में गैप था वो 32 महीने का था, और मुसलमानों का क्या था, 30.3 महीने, यानी कि दूसरे बच्चा होने के बीच में जो 30.3 था, ये 92-93 की बात कर रहा हूं मैं। और आज का हाल हो गया है 15-16 का जो ये रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में है कि हिंदू जो हैं उनका जो बच्चों के बीच का गैप है वो कम हो गया, 32 से 31.9 हो गया, और मुसलमानों का बढ़कर क्या हो गया, 30.3 से 32 हो गया। यानी कि उनका जो गैप है वो बढ़ गया। बढ़ने से क्या होगा, बच्चों की जो है तादाद जो है कम हो गई, और उसका जो है बहुत बड़ा जो है। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि जैसे जैसे तालीम जो बढ़ी, तो ये बहुत ही खुशखबरी है कि जो 2018 का जो हायर एजुकेशन का जो सर्वे है, उस सर्वे के अंदर जो दाखला है वो औसतन जो है वो पूरी देश का जो एवरेज है वो 24% है। यानी कि हायर एजुकेशन में 24% जो है औरतों ने दाखला लिया। लेकिन आप देख के खुश हो गए आप कि लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों का एवरेज एकदम दुगना है, यानी कि नेशनल एवरेज से एकदम दुगना, 47%। तो जब लड़कियां इतनी बड़ी तादाद में हायर एजुकेशन में और नीचे एजुकेशन में आएंगी मुस्लिम समाज की, तो जाहिर है कि वो फैमिली प्लानिंग जो है अपने आप ही होगा। ये बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है। जैसे कि अभी जो हमारी निजामत कर रहे हैं, इसका जो वो कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं, जो ड्राइवर हैं या उनके जो काम करने वाले हैं, उनके ज्यादा हैं। तो वजह वही है कि उनके पास जो है एजुकेशन की वजह से जो है ये हुआ है कि वो बच्चे जो है ज्यादा हैं। और जैसे जैसे अब इसमें होगा कि सरकार से हमें एक तो फैमिली प्लानिंग का बजट जो है उसे बढ़ाने की बात करेंगे,
लंदन कॉन्फ्रेंस 2012 में हुई थी फैमिली प्लानिंग की इंटरनेशनल, उसमें जो है टारगेट दिए हुए हैं, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमारा बजट जो है वो बहुत कम है। तो जब तक सरकार जो है उस बजट को नहीं बढ़ाएगी, यानी कि हेल्थ बजट का कुल 4% जो है वो फैमिली प्लानिंग पे है, तो आपको जो है उसको सरकार से हमें कहना है कि हमें तो और जो है ये कानून बनाने की जो कह रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं कि कानून बनाओ फैमिली प्लानिंग का, और उसके बाद जो है इसकी बजट बढ़ाओ। आप ये देखेंगे कि यहाँ हेल्थ का बजट जो है इतना कम है। एक तो एक बच्चे की जो जन्म लेता है उसमें से 1000 में से जो है कितने मर जाते हैं, 34 मर जाते हैं हमारे यहाँ। सरकार ने 30 का वो रख रखा है एक टारगेट। इसके अलावा जो है औरतें जो है बच्चा जन्म देते टाइम जो है वो बड़ी तादाद में जो है उनकी डेथ हो जाती है। 167 का आंकड़ा है, 167 औरतें 1 लाख में मर जाती हैं। तो ये तभी होगा जब आपकी हेल्थ फैसिलिटी बढ़ेंगी, हेल्थ का बजट बढ़ेगा, अस्पताल बढ़ेंगे, स्टाफ बढ़ेगा। ये काम सरकार की जिम्मेदारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट आई है 2014 के अंदर, उसने भारत पूरी दुनिया के अंदर जो अंडर 5 बच्चे हैं वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से, कुपोषण की वजह से 59 लाख जो है बच्चे मरे हैं, और भारत जो है उसमें 20% से ज्यादा मरे हैं पूरी दुनिया के, यानी 12 लाख बच्चे मर रहे हैं। तो आप कुपोषण की वजह से उन्हें उनका बजट अगर आप कम कर देंगे तो मृत्यु दर बढ़ जाएगी। तो हमको जो है सरकार से ये मांग करनी हैगी कि बिल्कुल खुशी से जो है हम उसका स्वागत करते हैं कि वो फैमिली प्लानिंग बजट बढ़ाए, और बढ़ाने के साथ ही साथ जो है वो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराए। इम्पायर भी इस काम को करने के लिए अपनी कम्युनिटी में तैयार है, वो हमको बजट जो है उपलब्ध करा दें। हम फैमिली प्लानिंग जो है खुद आगे बढ़कर जो लोगों को बेदारी जो है फैलाने के काम करेंगे। हाँ, इसमें जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि हम अपने जो दीनी आलिम हैं, जो मजहबी हैं, उनसे भी मदद लें, उनका सहयोग लें, और बेशक आप उनसे बात करेंगे तो वो जो है इसमें मदद करेंगे और करते आए हैं इसके अंदर जो है। तो हम जो है इस काम को जो है बहुत जरूरी है कि हम इसे करें, और जो देश का जो विकास है उसके अंदर जो है पूरी अब मैं इसमें एक चीज और मतलब आपके सामने जो है रखना चाहूंगा कि हमें उन लोगों से होशियार रहना है। किन लोगों से? जो सिर्फ टीवी के ऊपर बैठकर जो है इस तरह की बातें करते हैं कि वहां से गिफ्ट है और गिफ्ट को आप क्यों जो है उसे नामंजूर करते हो, इस तरह के जो है ये जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की तरफ से जो है इस तरह के वीडियो बहुत आते हैं। हमारे जो वो जो उपदेश देते हैं उनके बहुत वीडियो हैं, और वो उनकी खुद की जिंदगी जो है मजहब के बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं, लेकिन वो इस तरह के वीडियो डालकर जो है यहाँ जो है हमारे मुसलमान जितने भी हैं जो हिंदुस्तान के हैं उनको जो है बदनाम करने की काम करते हैं। उस मुल्क को उन्होंने बर्बाद कर दिया है, और बर्बाद करने की वजह से जो है अब वही वीडियो जो है हमारे अपने मुल्क को बर्बाद करने के लिए वो आते हैं। तो हमें ऐसे जो वीडियो हैं उनका भी बिल्कुल बहिष्कार करना है, निंदा करनी सार्वजनिक रूप से, कि हम अपने मुल्क का, अपनी फैमिली का हम खुद जो है बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए हाँ ठीक है, शुक्रिया। तो मैं यही कह रहा था टोटल मिलाकर जो है कि ये काम जो है हमें फैमिली प्लानिंग को बहुत इसका स्वागत करना चाहिए, सरकार से बजट की मांग करनी चाहिए, और बड़े पैमाने पर जो है इम्पायर इस काम को जो है प्रसार के लिए अपने आप को जो है ऑफर कर सकता है। शुक्रिया, मेरी बात आप लोगों ने सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा थॉटफुल, बड़ा इंफॉर्मेटिव और बहुत ही डेटा के से सपोर्ट करके आपने अपना ये अपना नजरिया रखा। और उसमें एक बात बहुत अच्छी है कि जो आपने कही कि हम लोगों को बहुत लाउड होके और भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को ये कहना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग मुसलमान करना चाहता है, पूरे दिल से करना चाहता है,
اور دیش کے باقی کمیونٹی سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، اسپیشلی جو ہمارا نچلا کلاس ہے جو ان اویئر ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے زیادہ بچے پیدا کر رہا ہے، وہاں پہ کام ہمیں کرنا چاہیے اور اس کا شور بچانا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اب میں انوائٹ کرتا ہوں مسٹر مجید فارق صاحب کو، یہ فلینتھراپسٹ ہیں اور ممبر ہیں سینٹر اسٹیئرنگ کمیٹی کے اس بار کے۔ ویلکم مسٹر مجید فارق صاحب، پلیز کم اوور۔ جی تھینک یو ویری مچ امپار، آپ لوگوں نے مجھے اس فورم پہ انوائٹ کیا، اور سب سے پہلے تو سنسار کے ایک اکیلے مالک کے نام سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو بڑے ہی ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ آج کا سبجیکٹ جو انٹیگریٹنگ فیملی پلاننگ مجھے دیا گیا، بلکہ سب کو دیا گیا ہے، اس پر کہنے کے لیے جو مجھے 10 منٹس کا وقت دیا گیا ہے، تو ریسپیکٹڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں اپنی بات ہیونلی اسکرپچرز کے لاسٹ اینڈ فائنل ٹیسٹمنٹ ہولی قرآن کے آئینے میں کروں گا، اس لیے کہ میں اس کتاب کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہوں۔ ہیونلی اسکرپچرز انسان کو ایک ہدایت اور گائیڈنس دیتے ہیں کہ ہاؤ ہی شوڈ بیہیو ان آرڈر ٹو اچیو دا گڈ لائف ان دس ورلڈ اینڈ ہیپینس ان دا لائف ٹو کم۔ انسانی زندگی میں سنسار کے مالک کی طرف سے ہدایت بہت ضروری ہے کہ انسان ایک سویلائز، مہذب اور بیسٹ سوشل نارمز کو مینٹین کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ انسان ایک ایسا کریشن ہے کہ وہ تنہائی اور آئسولیشن میں جیون نہیں گزار سکتا۔ مین بینگ اے سوشل اینیمل، اٹ از ہز کمپلشن اینڈ ناٹ اے چوائس۔ سنسار کے مالک کی کتابیں انسان کے ایگزسٹنس کے تمام پہلو اور ایوری فیسٹس آف لائف کو اس طرح گائیڈ کرتے ہیں کہ انسان اپنی اس دنیا کو کامیاب بناتے ہوئے اپنی موت کے بعد آنے والی ہمیشہ کی زندگی کو بھی سکسیس کس طرح بنائے۔ فیملی از دا پرائمری یونٹ آف ہیومن سوسائٹی۔ حفاظت، سیکیورٹی اینڈ پرسنل سیفٹی یہ ہمیشہ ہی انسان کا پیراماؤنٹ امپورٹنس رہا ہے اور اس کے لیے وہ فکر مند بھی رہتا ہے، اور یہ ایک وجہ ہے کہ انسان میں ایک ارنسٹ ڈیزائر اور گہری تمنا ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ میل اولاد ہو۔ The scriptures contain principles for all solving situations. پاپولیشن ایکسپلوژن ایک بہت ہی سیریس کنسرن بنا ہوا ہے ماڈرن پلانرز کے لیے۔ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ قرآن کی آیت نمبر 223 آف چیپٹر 2 اس سچویشن کو بڑی خوبصورتی سے ہینڈل کرتی ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ انسانی سماج میں لیڈیز سیکشن آنے والی جنریشن کے لیے گارجنس اور سرپرست کا رول اس طرح ادا کرتی ہیں جیسے زمین میں ایک بیج بو دیا جاتا ہے اور وہ زمین اپنی قوت اور انرجی اس بیج کو اس طرح فراہم کرتی ہے کہ اس بیج کو ایک فلاورنگ پلانٹ اور ایک پھلدار درخت میں کنورٹ کرتی ہے۔ اب میل سیکشن پر ایک فرض اور obligation بن جاتا ہے کہ وہ لیڈیز کی ایسی حفاظت کرے اور لیڈیز کو انسانی سماج میں ایسی عزت اور وقار دے، یہ سوچتے ہوئے کہ لیڈیز کا انسانی سماج پر ایک بہت بڑا احسان ہے جن کی قربانیوں اور سیکریفیشل ڈیوٹیز کی وجہ سے انسانی سماج میں تہذیب، تمدن بنتے چلے جاتا ہے، ہیومن سوسائٹی سویلائزڈ ہوتے چلی جاتی ہے۔ پورے قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں کہ لیڈیز کے حقوق یعنی ویمنس رائٹ کو بہت امپورٹنس اور اہمیت دی گئی ہے۔ ہیومن سوسائٹی پر لیڈیز کا احسان نہ صرف ایک بیوی کے روپ میں ہوتا ہے بلکہ ایک ماں کے روپ میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے بیوی کو لائف پارٹنر اور بیٹر ہاف کی طرح اس کی ڈگنیٹی کو مینٹین کیا جائے، نہ کہ ایک پراپرٹی کی طرح اسے یوز کیا جائے۔ ان کی قربانیوں کے تعلق سے بتایا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ انسان کو اللہ نے وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بیسٹ بیہیویئر کرے، کہ اس کی ماں کی انتھک محنتیں لگاتار 30 مہینوں تک جاری رہتی ہے، اور
मेल डोमिनेंट सोसाइटी से लेडीज सेक्शन के इस एहसान के बदले में अल्लाह ने बेस्ट बिहेवियर चाहा है कि लेडीज के बगैर इंसानी सोसाइटी परवान नहीं चढ़ सकती। लिहाजा हम देख सकते हैं कि कुरान में तलाक को बहुत मुश्किल बताया गया है और तलाक पर बहुत सारी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाई गई हैं कि एक जोड़ा जब टूटता है तो न सिर्फ पूरा फैमिली ट्री डिस्टर्ब होता है बल्कि उसके असरात इंसानी सोसाइटी पर भी बड़े भारी गुजरते हैं। सो वैल्यू बेस्ड एंड डिग्निफाइड ट्रीटमेंट विद द विमेन सेक्शन will go a long way to ensure the betterment of the future generations for integrating family planning. It is common to all that family planning is one of the most controversial issue in the followers of Islam. इस सब्जेक्ट पर भी मैं उसी आयत पर आपको ले चलता हूं जो सबसे पहले मैंने रिसाइट की। उसमें एक हिस्सा है वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, प्लान द गुड टुडे फॉर द सेक ऑफ बेटर टुमारो। आयत के हिस्से से मैंने समझा है कि फैमिली प्लानिंग भी इंसान के फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा है कि वो अपने कितने बच्चों को पालने पोसने की और उनकी नर्चरिंग की, उनके एजुकेशन की हैसियत रखता है, और इससे ऊपर वो अपनी बीवी की हेल्थ कंडीशन का भी ख्याल करे कि हाउ मेनी चिल्ड्रन शी इज एबल टू प्रोड्यूस। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी में मैं समझता हूँ कि एक मिथ है कि फैमिली प्लानिंग इस्लाम में हराम है। इस आयत से अल्लाह ने इंसान पर उसके हालात, उसकी हैसियत और उसकी कैपेसिटी पर छोड़ा है कि इंसान खुद अपनी सोच समझ से फैसला करते हुए अपनी प्लानिंग करे। अब मैं आता हूं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर, जो एक डिस्गाइज और लायबिलिटी समझा जाता है, जबकि कुरान ने इसे एक एसेट बताया है कि युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इंसान ब्लेसिंग को याद करो कि उसने तुम्हें नेचुरल सोर्सेज एंड रिसोर्सेज दिए, तुम्हें ऐसी पॉपुलेशन दी कि तुम्हें वर्क फोर्स एंड मैन पावर की कभी कमी महसूस ना हो, और तुम्हें बड़े बड़े समंदरी किनारे दिए, नदियों के नहरों का जाल बिछा दिया, वाटर रिजर्वायर्स दिए, घने जंगल से नवाजा, खेती बाड़ी के लिए प्रोडक्टिव जमीन दी। लेकिन अफसोस कि इंसान ने नेचुरल ब्लेसिंग्स की कदर नहीं की और संसार के मालिक का शुक्र अदा नहीं किया, जिसके बारे में कुरान ने कहा और खूब कहा, फकफरत बिअनउमिल्लाह। संसार के मालिक ने ऐसी आबादियों की मिसाल देते हुए बताया कि कुदरती नेमतों की नाशुक्री करते हुए उन्हें बर्बाद किया, उनका मिसयूज किया। तो फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जुए वल खौफ़ि बिमा कानू यसनऊन, अल्लाह ने उनकी हरकतों के सबब उन पर बेकारी, बेरोजगारी और भूख का लिबास चढ़ा दिया। हमारी पॉपुलेशन जिसको हम एक डिस्गाइज समझते हैं, वो डिस्गाइज नहीं है बल्कि ब्लेसिंग साबित हो सकती है। वेस्टर्न कंट्रीज को हम देखें कि उनकी पॉपुलेशन कम होती चली जा रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूं कि उन्होंने मैरिज इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया, ब्लड रिलेशंस और इंसानी रिश्तों की रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी को खो दिया। अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क में और खासकर मुसलमानों में शादी ब्याह की परंपरा अभी तक तो जिंदा है, लेकिन खतरा हमारे सर पर है। हमें इसे बचाने के लिए मजहब का फर्क किए बगैर एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और हमारे मैरिज इंस्टीट्यूशन को हमें संभालना होगा। और ये भी हमें देखना है कि सेम सेक्स मैरिजेस को अब हम इंसानी आजादी के नाम पर जस्टिफाई करने लगे हैं और वो नेचुरल सिस्टम को एक चैलेंज है। एंड व्हेनेवर ह्यूमन बीइंग challenges the natural system, the result comes in catastrophe. मैं इस पर एक आयत और कोट करूंगा, वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। हर चीज को संसार के मालिक ने जोड़ों में, पेयर्स में और कपल्स में पैदा किया है। इस आयत से इंसान को एक नसीहत दी जा रही है कि मेल एंड फीमेल के कॉम्बिनेशन में ही जिंदगी की जमानत है, वरना वीरानी है। नाउ आई कंक्लूड विद द सप्लिकेशन विद गॉड ऑलमाइटी कि अल्लाह हम इंसानों को होशमंदी दे और अपने ही हाथों तबाही और बर्बादी से बचाए। Thank you very much for your patience. May God bless all of us. Thank you, Mr. Majid Parekh, for a very thoughtful speech, and all in reference to Quran. We really got enlightened with your speech. Now, Mr. Brigadier Sayyid Ahmed is not available, and his sister has expired. Inna Allah wa inna ilayhi raji'un. Let's pray that Allah unki maghfirat farmaye aur unko jannat naseeb kare. Now, welcome Dr. Lubna Kamal. She is an associate professor in the State JLN Homeopathy Medical College, Kanpur. Welcome, Dr. Lubna. Welcome, Dr. Lubna. Come over. Thank you so much, Impar, and all of you.
for inviting me over here. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam. So I am a medical doctor, as you all must be knowing. And I was literally burning with this issue ever since I have entered this medical school. I was always burning with this topic, and I always wanted to speak on this. And the most important thing is that I joined the course of Alama from Nadwa Open University, so that I can address this all these kind of issues which are plaguing our community, which are plaguing Muslims. So that I have an authority, because Quran speaks of something else, and what we get to hear from the ulamas is something else. So family planning, when you talk about family, when I speak about family planning to my patients, so they say वो तो अल्लाह ताला की नियमत होती है बच्चे, हम वो कैसे ज़ाया कर सकते हैं, कैसे हम उसको रोक सकते हैं. So they are not I mean, they do not buy what I have to say, they do not get it. So I joined this course of Alma, and Allah kare ki wo jaldi se pura ho jaye, so that I can speak authoritatively on this. And now I would want to say the next thing is that Islam is a religion of moderation. Islam में कहीं पर भी extreme पर जाने में कहीं पर कुछ वो नहीं है. Islam is a religion of moderation, and there are few ayats which I would like to quote. There is this one, Surah Baqarah, ayat number 185, then Surah Hajj, ayat number 78, and Surah Nisa, ayat number 28, that Allah does not wish to burden its believers. अब किसी के अगर 7-8 बच्चे होंगे तो obviously खाना कहाँ से होगा, स्कूल कहाँ से होगा, मेडिसिन कहाँ से होगी, ये सारे मसले होते हैं. बट ये हमारे जो ज्यादातर उलमा हैं वो इस तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं, खास तौर से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, कि वो ये समझते हैं कि वो खाना पीना, पढ़ाना लिखाना वो सब जरूरी नहीं है. सबसे ज्यादा जो अहम है वो बच्चे पैदा कर देना है. And every single day I see patients who I see women who are suffering like anything because of multiple abortions, MTPs, multiple births. तो मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है कि औरतें कितना ज्यादा सफर कर रही हैं. एक औरत का जिस्म तैयार होता ही नहीं है 3 साल से पहले दूसरा बच्चा करने के लिए. But I've seen I see it on a regular basis that 1 साल में हो जाता है, 1.5 साल में हो जाता है, 2 साल में बच्चा हो जाता है, and sometimes they have to go through this MTP or abortions and all. So the most important thing what I feel is that we must rope in our ulemas, and this is something which should be talked about in masjids, in ijtimas and all. जब तक कि हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक जो आम आदमी है उसको डॉक्टर की भी बात नहीं समझ में आती है. I'm not talking about the literate and the elite and the educated. वो तो ठीक है, वो वैसे भी उनका सब बैलेंस है. But जो most important जो है रिक्शे वालों की कैटेगरी है, जो शॉपकीपर्स हैं, स्मॉल टाइम फेरी वालास हैं, they have so many children. तो इसमें इसको एड्रेस करने के लिए जो सबसे अहम बात है वो उलमास को रोपन करना होगा, और वो जब ये बात कहेंगे किसी प्लेटफॉर्म से, then only people will understand, then only a normal Muslim will understand. The second thing is